Okay, so first and foremost, I'll just for अभी तो हमें Azure portal की इतना need नहीं है, but I would suggest कि you can create after few days or 7 days. I'll show how to create the Azure portal. But meanwhile, we can create the Azure Community Edition. Any one of you can share your screen and then you can go with this Azure Databricks Community Edition. मैं एक का screen share करके एक बार allow कर दूंगा. Then you can create your Databricks edition here itself. Now, before going through the Databricks, let's go very quickly. So, yes, anyone, any question? Okay. So, Sachin, are we going to cover the Python as well, like some basics related? Manish, Or actually, Python is big, big correlated with PySpark. Because what happened earlier now, Spark is actually written on Scala. तो ओरिजिनली ये स्काला पे लिखी गई थी. Mhm. Then we had popularity of Spark, so they just moved to the Python. So उन्होंने Python को और Spark सेशन को कंबाइन कर दिया. Mhm. This PySpark, this PySpark is the combination of Python plus Spark. This is the reason it's called PySpark. So we will be learning PySpark. It's almost similar. अगर आप उसके syntax देखोगे Mhm. तो वो ऑलमोस्ट बहुत सारे सिंटेक्स जो है वो सिमिलर होंगे. Why we are focusing on PySpark, not Python? Because if Mhm. you want to become data engineer, so because the role we are looking for the data engineer after this session or cloud engineer. So for cloud engineering, we need to perform ETL process. And this ETL process is entirely deployed over PySpark, not Python. Am I clear? Yes. But actually, there will be like some loop and everything will be covered in the PySpark only, right? Yes, All वो this सारी OOPS चीजें, concept I'm हाँ, referring. वो सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है वो सेम है. बट थोड़े से सिंटेक्स इसमें क्या है, चेंज है पाइस्पार्क में. इट्स ऑलमोस्ट सेम कि पाइथन के जैसा ही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पाइथन प्लस स्पार्क है. Mhm. बट अगर आपको एक बार पाइस्पार्क आ गया मींस आपको पाइथन आ गया बाय डिफॉल्ट है. Mhm. Okay. और अगर आपको पाइथन का नॉलेज है तो आपको पाइस्पार्क भी थोड़ा सा बस आपको एक बार रिव्यू करना है. इट्स ऑलमोस्ट, बट आई वोंट से कि इट्स सेम, बट इट्स आई वुड से इट्स 80% इट्स ऑलमोस्ट सेम. जो कॉन्सेप्ट है, जो कोडिंग है, जो स्ट्रक्चर है, फिनोमिना है, एवरीथिंग इज. So I'll walk you through one by one how to Mhm. perform this ETL and data engineer. Mhm. Okay, any question? I would like to hear everyone's thought on this topic. Streaming I data. guess that's fine. Huh? That's fine. Python जैसे आ गया, and then might be Spark also will be there. So yeah. Yes, क्योंकि what happened ना, nowadays we have big data in the market. So what is the big data? For example, you have live streaming here. So live streaming, for example, you are being asked from the कि भैया ट्विटर का जो डेटा है वो फैच करके लाओ. You have to perform this work. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का आपको डेटा आपको प्रोसेस करना होगा, ईटीएल करना होगा. और यू विल हैव टू गो फिर जैसे एडिडास का कोई शोरूम है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, यू विल हैव टू प्रोसेस द डेटा. और एनएलपी का बेसिस पे कोई आपको एमएल का कोई आपको प्रोजेक्ट करना होगा. और यू विल हैव टू प्रोसेस सम लाइव स्ट्रीमिंग किसी वीडियो की है, दैट यू विल हैव टू परफॉर्म दैट टास्क. every project we are discussing here is related to big data. And Python is not very much familiar, very much compatible with the big data. This is the first reason. So we are focusing nowadays. Gone are the days कि हम big data की बात नहीं करते थे, but everywhere we had big data. तो कंपनी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इन चीजों पे फोकस करें कि जो स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर है, मतलब कि बिग डेटा के ऊपर है.
This is the reason PySpark is very much important here. And why Python is where Python is required. Python is required where we had the ML, pure ML के पहले जैसे कोडिंग होती थी या कंप्यूटर विजन के कोड होते थे या कोई भी आपका NLP बेस का कोडिंग है, तो वो आपके मतलब ऑफलाइन जैसे कोड कोई आपको डेटा दे दिया या आपको कोई भी एक बैच में डेटा दे दिया. But if you are keen to get started with the big data, you will have to switch PySpark eventually. This is the reason I do not want to start with Python. Okay, PySpark streaming data. We know what is the streaming data. Streaming data which is coming from the uh, Twitter, coming from the live आपका जो store है किसी का. For example, McDonald is there. For example, Pizza Hut is there. So everyone are dealing with the customers and daily basis pay या hourly basis pay you will have to perform that streaming. It's a immediate processing, right? Yes, Mm. yes. And immediate basis means like 10 raised to power 7 rows you will have to process. So when we have to process this much amount of data set, then PySpark and Databricks is very, very useful for this. This is the reason Azure or AWS or GCP, every cloud, they just integrated Databricks in itself. उन्होंने Databricks को इसीलिए अपने में इंक्लूड किया, Spark को इसीलिए इंक्लूड किया ताकि वो बिग डेटा के ऊपर काम कर सके, स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर, लाइव डेटा के ऊपर. Yeah, so Sachin, sorry, in Databricks exactly what it is, and ये standalone अलग चीज है, but then अगर every cloud इस पे platform पे ये as a included part हो गया है अभी. Yes. That's what you are saying. Yes. So when we had batch data set or ETL pipeline, full load application, this was ये सारे के सारे जो वर्क थे ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे. पहले किस पे काम कर रहे थे? अगर मैं आपको शो करूं तो ये Databricks के इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे. Then when I go for the portal.azure, then you find Databricks, your Databricks. Can you see the logo is same? Can you see this logo? Yes. ये logo यहाँ पर जो है ये वाला logo, this logo is same क्योंकि ये tie up किया है Azure Databricks में. So if you are going to create Databricks service here, for example, I had this free trial. I do. I'll explain this one is on the sketch, but मैं एक बार यहाँ पे how we are. Yes. So meanwhile, it's creating. So we had seen what's inside, what's the methodology. We will discuss the projects based upon this Databricks. We will discuss student data analysis with my data set and how we can go for employee data analytics. These are the projects we will be discussing. I'll give a quick review of this collaborating filtering. We will discuss Spark streaming. अगर आप बोलते हो कि मुझे Spark streaming आती है, that's big weightage on your CV. ETL pipeline in Databricks as well as ADF, Azure Data Factory. दोनों में हम डिस्कस करेंगे. Full load and application, we will discuss this part as well. Spark and why Spark. So Spark आपको सबसे पहले जरूरत है कि स्पीड के लिए, because when you have the live data set, for example आपके पिज्जा हट से कोई डिलीवरी आ रही है and you want to process कि कौन सा सबसे ज्यादा you want to get data insight
कि ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे लेस सेल हो रहा है, एंड यू वांट टू शट डाउन दैट प्रोडक्ट, यू वांट टू गेट डिसीजन, यू वांट टू टेक दैट डिसीजन कि कल की डेट में वो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग ना करें या उसका डिलीवरी ना करें. So that would be the, like for example, coffee. The coffee is not very much sold in that store. So you need speed for such processing. Distributed. So we had server located at different location. For example, मेरे पास में है एक salary का column and I had this salary 1000, 5000, 400, 650 and 8500. Now I want to have just GST. I want to calculate GST कि सबका 18% GST calculate करके मुझे next column में दे दे. This is right of example. Now what you do? You will get the 18% of 1000. तो अगर आपके पास single processor है, one processor is there, then how much time it will take? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 seconds लगेगा. Now you have 3 processor instead of one processor, now you have 3 processors, 3 workers है उस काम को करने के लिए. So now 1, 2, 3 कितना टाइम लगा? Only 2 सेकेंड, क्योंकि इसने फर्स्ट वर्कर ने इस काम को 2 सेकेंड में किया, उसी टाइम स्टैम्प में दूसरा वर्कर भी इसी काम को कर रहा है और तीसरा वर्कर भी इसी काम को 2 सेकेंड में कर रहा है. सो कॉन्फिडेंटली आपका काम हुआ 3 प्रोसेसर की हेल्प से. Now you have reduced your work from 5 seconds to 2 seconds, which is very much amount आपका speed के point of view. And this is also called distributed. You have distributed. ठीक है? अगर आपका जो काम 6 seconds में हो रहा है, अगर आपका 2 seconds में काम हो रहा है, so आपने अपनी speed को 1/3 से reduce कर दिया अपने टाइम. This is the concept of Spark. इसीलिए Spark बहुत फेमस हुआ कि उसने मार्केट में एकदम अपना जो है पूरा अपना पूरा एक्सप्लोर कर दिया कि सबको जरूरत पड़ी Spark के बेस पे काम करना. So we can go through the advanced analytics, real-time analysis, powerful coaching, fault tolerance, deployment. These are all features of Spark. Any question? So let's talk about any issue that have come up since last part. सचिन, तो एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन, तो स्पार्क इज अ, जैसे आई अंडरस्टैंड कि वो स्पीड दे रहा है आपको एंड देन ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है आपका, बट देन एसक्यूएल था, नॉन एसक्यूएल थे, ये डेटाबेस और वो प्रोसेसिंग का पूरा देता था साइज. तो स्पार्क is not exactly the complete database, then it's a process or maybe the system which fetch and process the data as an entire system it is, correct? Yes. Actually, it's also having so many libraries. This Spark is also including so many libraries. You can see this is consisting SQL, this is including streaming, this is including machine learning library and graphics. So using these library, this live streaming is very much. For example, if I ask 10 raised to power 10,000 या 1 lakh रोज है मेरे पास, और रोज का मतलब कहीं कहीं हम इसे रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं. हाँ. इनको आपको प्रोसेस करना है या सिंपली आपको इसका सबका 18% जीएसटी निकाल. तो यू वुड से दिस, अगर सिंपली सीक्वल की बात करूंगा, तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो टाइम टेकिंग प्रोसेस मींस इट्स फेचिंग योर ऑन प्रेमिसेस डेटा. पहले हमारा डेटा जो था ऑन प्रेमिसेस था. तो एनीवन, व्हाट इज द ऑन प्रेमिसेस डेटा? एक्चुअली Yeah, इन that is हाउस on DBs the में शायद. that is not on cloud. On premises means data which is there in the system or Servers. servers. Yes.
either it is on server, either it is in my laptop or your laptop, either it is on any machine which is located at some place, it is in the hard drive, any hard disk में, or it is some SQL server, and or it is in Oracle, और कहीं भी physical location पे store है. So that is on-premises data. So SQL was very familiar with the structured data set with these on-premises. But when we had cloud or very much high data set, जैसे कि यहाँ पर 10,000 rows हैं, 1 lakh rows हैं, और उनको fraction of seconds में आपको output चाहिए, then you need Spark. The Spark के बिना, और also not only the Spark but also this this structure is also required. This driver node is actually having code. जो PySpark का code है वो हमारे इस driver node में होगा. Then this PySpark will invoke here, will invoke this cluster manager, which will divide the work into the workers. This is the worker 1, this is the worker 2, this is the worker 3, and so on. We can generate more workers according to job responsibility. If I show that total, so here you can see this one is the new, and I'm going to create a cluster here. So this is cluster is nothing but a kind of cloud or kind of this one operating system, I would say. Can you see this is asking to create cluster for me? So without creating this cluster, I cannot run any code. पहले Python में क्या होता था, बस आप चाहिए उसका कमांड लिखिए और आपको रन कर दिए. SQL में भी ऐसे ही होता है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर हमें पहले क्रिएट करना होगा. जैसे मैंने क्रिएट किया भास्कर क्लस्टर. So this is the specific cluster, or I can change the version as well. तो अभी मैं इसका वर्जन चेंज नहीं करता. I'm going to keep it as it is. But according to your job or your journal specifically, you can create this specification. I'm going to create compute. It will take time. क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए पूरा का पूरा सर्वर क्रिएट कर रहा है. अब आप देखो, here we had this one opportunities, 2 cores है मेरे पास. So these cores are nothing but जो मेरे clusters यहाँ पर available हैं, जो ये मेरे workers हैं यहाँ पर, ये वाले workers. Yes, Manish. Yeah, so this cluster is created by admin, right? I mean, because it's cost is associated with it. So basically, I mean, in the industry, admin is provided the cluster, or Yes. we should. Right? Sometimes if you are working as a data architect, you might have heard the job role. एक job role होती है जिसको बोलते हैं data architect. Yes. So अगर हम data architect हैं या data engineer हैं, so if you are playing role of data engineer, that in that case no, आपको नहीं करना पड़ेगा. In case you are playing role of both, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या है आज की डेट में माइग्रेट कर रही है. दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस टू क्लाउड. तब उस सिनेरियो में यू विल हैव टू क्रिएट दिस क्लस्टर बाय योरसेल्फ एंड देन PySpark ETL प्रोसेस और जो क्रिएशन है ट्रांसफॉर्मेशन वो सब आपको करना होगा. बट अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसमें डेटा आर्किटेक्ट अलग से रिक्रूट किया गया है, इन दैट केस में आपको नहीं करना होगा. Okay. बट हमें पता होना Yeah, चाहिए we should know. Yeah, correct. कि हमें कि ये हमारा जो कोड है वो कितने कोड्स पे रन हो रहा है. जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में कौन सा इंजन है, पेट्रोल है या डीजल है, तो वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए. So in order to cover the advanced activity, so you can come back here. It is. So now if I run this one new notebook, जैसे ही मैंने इसे न्यू नोटबुक क्रिएट किया,
Now, can you see here? I'll have to attach that cluster at the top without attaching, and here I have choice to write the code कि मुझे SQL में लिखना है, Scala में लिखना है या R language में लिखना है. So that's my option. So I'm going to select this Python. So Python का मतलब यहाँ पे literally Python नहीं है. People get confused कि यहाँ पे Python लिखा है, but हम बोल PySpark लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ पर अपने Spark सेशन से कंप्लीट कर रहे हैं, एंड को क्लस्टर बेस पे या इस इस मैनेजर वर्कर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे हम चीजों को रन करा रहे हैं. इसीलिए हम वहां पे उसको बोलेंगे पाइथन प्लस स्पार्क, which is PySpark in short. So first I'm going to import basic libraries in PySpark. So this is my first code. Comment it so that I do not want to run by compiler. It by compiler, and from PySpark I'm going to import, because PySpark is very big library. तो उस लाइब्रेरी में से मुझे कुछ कंपोनेंट उठाने हैं, पूरा का पूरा PySpark नहीं उठाना. I'm going to import first Spark, which is the configuration. So it will configure everything, every file, every node. I'm going to Spark context, which is the context file. Can you see? तो ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, मेरे भास्कर का जो क्लस्टर था उससे क्या कर दिया, अटैच कर दिया, कनेक्टिंग टू माय मोस्ट रिसेंट कंप्यूट रिसोर्स. तो दिस इज द कंप्यूट रिसोर्स. अब चूंकि हम अभी डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, अभी चार्ज नहीं करेगा. बट अगर आप यही सेम चीज क्लाउड पे परफॉर्म करोगे, सो यू विल हैव टू चार्ज, यू विल हैव टू पे. बहुत कम होगा, कुछ कुछ ₹2 ₹5 ऐसा ही होगा अगर आप बहुत कम समय के लिए करते हो, बट देयर वुड बी चार्ज. Now let's connect and establish dialog with the file. So first I'm going to create a variable which is configuration Spark configuration. This would be the Spark configuration. Then need to create a set app name, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज करते हैं तो वो ऐप के बेसिस पे करेंगे, और उस ऐप का हमने कुछ नाम लिख दिया. हाँ, नाम दे दिया फर्स्ट मनीष, उसके अंदर सारा. देन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, दैट इज स्पार्क कॉन्टेक्स्ट. अगर ये ऑलरेडी है तो इट विल गेट दैट स्पार्क. अगर ये ऑलरेडी नहीं है तो इट विल क्रिएट दैट स्पार्क. So that configuration we just created above, and I'm going to create this configuration. Just run. Can you see? Less than 1 second के बेस पे रन हुआ. And now one more thing, ये जो compute resources या जितने भी आपके memory है या जितने भी आपके speed है या आपके हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, तो ये सारे आपके या मेरे लैपटॉप के यूज नहीं कर रहा है. इट्स नॉट यूजिंग माय लैपटॉप, रादर ये जो इंस्टांस मैंने क्रिएट किया है कंप्यूट रिसोर्सेस, उसके सारे प्रोसेसिंग यूनिट. एम आई क्लियर? Yes, in memory. Yes. So does anyone have any question before I begin? So these two modules like Spark context and one more, right? So that is for the configuration. Yes. And when we are writing get or create, um, that is the one more functions. Yes.
So get or create, what exactly it does? It will configuration that file which we will upload a file. So we will upload a text file. file text file. तो इस text file को मुझे अपलोड करना है इस Databricks. तो simply we had 1 2 3 4 5 6 7 8 और if I मैं ऐड कर दूं 27 ऐड कर दूं तो ये फाइल के जो भी कंपोनेंट्स हैं that's going to configure in my Databricks. इस फाइल को अपलोड करने के लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे वहां पे सारी चीजें चाहिए. फर्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए. अगर वो ऑलरेडी है तो वो गेट करेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा एट रन टाइम. Now I'm going to create a variable called RDT. Sorry, Yes, Sachin. yes. So when you shown that file, text file, so I got कि आपने एक कॉन्फ रेफरेंस बनाया, फिर उसके एज अ मनीष फर्स्ट नेम दिया, उसके ऊपर आपने एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट और यूज रीयूज वाला सेट किया है कॉन्फ इक्वल टू कॉन्फ के साथ. अब ये जो फाइल आप रेफर कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि उसका रेफरेंस कहाँ से रीड करना है, कहाँ से लेना है, एंड देन इज दैट एग्जैक्टली द डेटा और इट्स अ मेटा डेटा काइंड ऑफ थिंग? No, it's a pure data. It's a pure data which we need to upload or somewhere keep it Yes, for future use. yes, Tables. yes. So so here using the new, I just click control. अगर आप कंट्रोल के साथ में से प्रेस नहीं करोगे you will lose this view. I'm going to press control from the left hand side. Left hand side से मैंने इसे कंट्रोल किया, then clicking on this table option. क्योंकि अभी तक हमने जो एक्सप्लोर किए हैं वो नोटबुक which is currently this showing. नेक्स्ट हमने क्लस्टर यूज किया अपना कंप्यूट रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए. देन नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थर्ड ऑप्शन टेबल जो मुझे यहाँ पर लेके आया. नाउ कैन यू सी ड्रैग इन फाइल टू अपलोड. आई एम गोइंग टू ड्रैग इट हियर एंड देन डाउनलोड्स एंड देन सैंपल फाइल को मैंने अपलोड किया. अगर ये कंपनी का डेटा है तो वो एज इट इज रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट जब तक मुझे मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं बोल देगा या मेरी कंपनी मुझे एक मेल नहीं डालेगी कि ये डिलीट कर दीजिए. तब तक मुझे इसको डिलीट नहीं करना है. मेरी कंपनी में तो हर एक चीज इवन फॉन्ट चेंज करने और कलर चेंज करने तक का मेल आता है कि आप पावर बीआई में या किसी भी चीज में पाइपलाइन को कोई भी चीज टच नहीं कर सकते. तो वो सारी ऑथेंटिसिटी पहले से ही आपको एक मीटिंग होगी उसमें बता दिया जाएगा. Got it. Okay. Now I just uploaded data to Databricks और आपने देखा मैंने यहाँ से एक चीज यहाँ से का लोकेशन कॉपी किया. दिस इज द लोकेशन ऑफ माय टेक्स्ट फाइल. जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल करी है उसका लोकेशन है ये. आई विल बी यूजिंग दिस लोकेशन in my code PySpark. So now I'm going to create a variable RDT and now अब मुझे Spark context जो मैंने ऊपर create किया है इस वाली लाइन में that would be used here. तो text file जो मेरा given है codes and that paste that address जो मैंने अभी वहां से paste. This is the reason we require this SC. If you can see this SC nothing but Spark context. Yes. And this Spark context is fetching this file जो कि sample की file है. And this is going to configuration everything. ये कौन सा configuration है, CSV configuration है या JSON का configuration है या आपका पैराक्विट का configuration है या आपका कोई एक्सेल की फाइल है या आपकी कोई टेक्स्ट की फाइल है या आपका कोई स्ट्रक्चर डेटा सेट है या आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा सेट है. ये सारे पैरामीटर्स हम आगे के सेशन में देखेंगे. बट इन अ नटशेल दिस इज द पर्पस ऑफ दीज टू टेबल्स, दीज टू कमांड्स. Okay. So how this RDD differ from data set? I'll explain that part. Yeah, okay. Yeah, sure. And this
Now we had RDD and day end. So in upcoming session, we will read detail of this RDD. So here we had collect. So I'll have to collect this file, display the content. Can you see? It's a displaying all the content over here. But if you recall that जो सारे integers हैं वो सारे यहाँ पर string के format में show रहे हैं, not integer. So here we had all the string, everything is there, everything is showing here. So can we split this string? Of course, yes. So that would be the first transformation for our exercise. तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपको लिखा है किसी ने जुलाई, आपको डेटा दिया है जुलाई 13 2024 एंड योर कंपनी सेज नहीं, नहीं मनीष ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना है 130724. दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट which we are using in Teleperformance or Infosys. So you will have to change data format. आपके लिए एक तरीके का क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज द आइटा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको एक ये ट्रांसफॉर्मेशन 10,000 रोज में करना है, और करना कितने सेकंड में है, 1 सेकंड से कम समय में. ये सारी लिमिटेशंस की वजह से हमें चाहिए ये सारे कमांड जो कि हमें यहां पर मिलते हैं. एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का, मान लीजिए आपको चाहिए जीएसटी है 18%, तो आपको उसका करके लगना है 25% और ऐड करना है सारी वैल्यू को करके. तब आप सोचिए 350 का 18% निकालना ही अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है. अब आपको 18% भी निकालना है प्लस उसमें 25% भी ऐड करना है. दिस शुड बी डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. दिस इज द रीजन वी नीड हाई प्रोसेसिंग. So our progress on our ongoing topic is just related to high processing. तो ये RDD का concept इसीलिए है. Now to split all values here, I'm going to create new RDD here. So this would be called RDD.map. Inside this map, I'm going to create lambda, which is anonymous function name. I'll explain this lambda in upcoming session as well, but just using this lambda for splitting this. Now I'm going to use this RDD.collect so that we can view the data set. Can you see? Can you find the difference between the output now? अब मेरे पास में जो ये डेटा सेट है ये सारे एक कोट्स में नहीं है बल्कि अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में ऑल्सो दी कोट्स. तो हमारे पास ये कोट्स. एनीवन, एनी क्वेश्चन? सो यहाँ पे आई गेस कॉमा सेपरेटेड को हमने अलग एरेज में ले लिया है सिर्फ. अभी ऐसा हो गया यानी एक ग्रुप ऑफ को एरे का एक पहला इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स और तीसरे इंडेक्स में डाल दिया है. Yes, and this is the most favorite question what of the interview. What is map in PySpark? PySpark में मैप कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो? यू कैन गिव द एग्जांपल टू द इंटरव्यू कि आपको मैपिंग कैसे करनी है. तो आपने मैप किया है अभी सिर्फ स्प्लिट का. आगे हम देखेंगे कि और भी क्वेश्चंस हैं. जैसे आगे एक क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है. मान लीजिए मैंने लिखा एक 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 कोड लिखा, उस कोड में लिखा है आई हाउ आर यू. तो इसका आउटपुट आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर 2 3 3 4. व्हाट इज दिस 2 3 3 4? जितने भी स्ट्रिंग के नंबर्स हैं, लेंथ है,
वो सारी यहाँ पे प्रिंट होगी। जैसे इसमें 2 लेंथ है, इसमें 2, इसमें 3 है तो इसमें 3, इसमें 3 है तो इसमें 3, इसमें 4 है तो इसमें 4। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैपिंग। तो आपसे इंटरव्यू में कोई भी कोड दे देगा छोटा सा कि ये इनपुट है और आपको ये आउटपुट चाहिए, तो यू विल से यस आई कैन डू दिस क्वेश्चन यूजिंग द मैपिंग प्रोसेस इन दी पाइप। सचिन, एक है यहाँ पे हमने x डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट्स में ये स्पेस के साथ किया है स्प्लिट। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो इट्स गॉट स्प्लिटेड विद द कॉमा, जो है कोलन कॉमा है 1 2 3 4 देन 5 8 10 12 15। सो ये स्प्लिट के साथ उस स्प्लिट किया है विद द कॉमा और एक नया नया इंडेक्स एरे बना दिया। और ये पहला क्वेश्चन तो आई गेस कोलन था, यानी सॉरी कॉमा था, एंड देन ऊपर पे ये एक पहले इंडेक्स में आप देखोगे तो 4 के बाद एक और स्पेस है उसके पास। सॉरी, मैं शायद कुछ मेरा जो पिछला लर्निंग है उसके बीच में कुछ मिक्स करने की नहीं, मैं कोशिश आपको कर। स्प्लिट का ना अलग से दिखाता हूँ कि व्हाट इज द स्प्लिट मीन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्लिट। तो जब कभी भी आप स्प्लिट को कोई एक सिंगल एलिमेंट देते हो, तो सिंगल एलिमेंट में जहां कहीं भी उसको ये मिलेगा, ये का मतलब है कि अभी हमने इस कोट्स के अंदर दिया है स्पेस। वी कैन गिव एनी एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइफन भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डॉलर सिंबल भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस कोट्स के अंदर कोई भी रुपीज का सिंबल या कोई डॉट के साथ में है, सेपरेटर। सेपरेटर, एग्जैक्टली। उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, एक लिस्ट, it will convert the data input into the list with certain elements, splitted element। splitted elements जो है वो कौन डिसाइड करेगा, ये सेपरेटर डिसाइड। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द एग्जांपल हियर। अगर मैंने यहाँ पे दिया है ये वेरिएबल और अब मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ var2 is consisting इंडियन डॉलर रुपीज। I am going to perform this var2 dot split, और अब मैं स्प्लिट स्पेस के साथ नहीं कर रहा हूं बल्कि डॉलर के साथ कर रहा हूं। यानी सी अब इसने इंडियन और रुपीस को अलग अलग एलिमेंट बनाया है, ना कि 3 जैसे हो। लेकिन अगर इसी कोड को मैं स्पेस के साथ रन कराऊंगा, डॉलर के साथ में नहीं करूंगा, तो मुझे क्या देंगे, 3 एलिमेंट मिलेंगे, एक तो इंडियन, एक डॉलर, एक रुपी। तो यू विल फाइंड स्पेस in between Indian dollar, dollar and rupees, that's it, first to second third। हाँ, ये सही है। अगर आप ऊपर जाओगे, पहले एग्जांपल पे जाओगे आप, हाँ, अब यहाँ पे हम स्प्लिट करें बाय स्पेस, करेक्ट। सो ओके, 1 और 2 के बीच में एक स्पेस है तो उसका एक एलिमेंट ले लिया उसने, और 2 और 3 के बीच में भी ले लिया ये यहाँ पे, और 4 और 5 के बीच में भी एक स्पेस है, इसलिए उसने उसको पकड़ा हुआ है एक्चुअली 4 और एम्प्टी। 5 के बीच में स्पेस नहीं है, एक्चुअली ये वाला एक एलिमेंट है, दूसरा वाला सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है, करेक्ट। इसीलिए उसने एक एलिमेंट का यहाँ पे एक पूरा आइडेंटिटी क्रिएट किया है, दूसरे का यहाँ पे क्रिएट किया है और तीसरे का यहाँ पे क्रिएट किया। एग्जैक्टली अभी वही है कि यहाँ पे हम स्प्लिट किससे करने के लिए बोल रहे हैं, उसको बोले कि बाय स्पेस से कीजिए, ठीक है। बट अगर मैं मोटा ऊपर से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि उसने कॉमा से सेपरेट करके उसको 3 इंडेक्स में डाल दिया है, और उसके एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक क्या चीज है, फ्लैट मैप। आगे कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कल के सीरीज सेशन में फ्लैट मैप। उसमें क्या करेगा, उसमें ये पूरा एक ही एलिमेंट के जैसे आपको दे देगा एक ही सीरीज में। वो आपको ये पता ही नहीं लगने देगा कि ये 1 2 3 4 अलग एलिमेंट है, 5 8 10 12 15 अलग एलिमेंट है, और ये 14 5 25 65 27 अलग एलिमेंट है। ये पूरा आपको एक ही सीरीज में दे देगा, जैसे दैट इज कॉल्ड फ्लैट मैप। तो उस सिनेरियो में जहां पर ये चीज मैप में डिफाइन कर रही है
वहां पर ये सारी चीज एक ही सीरीज में डिफाइन होगी। जैसे कि यहाँ पर इसने एक स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर दिस वन इज सेपरेटेड बाय स्क्वायर, तो वो बता रहा है आपको कि ये एक पहला आपका आई था, मैं फॉर लूप के फर्स्ट आइटरेशन में इसको प्रोसेस किया हूँ, हम्म तो उसने अलग इसका आइटरेशन कर। हम्म ये आपको दूसरे टर्म्स आइटरेशन पे आया, इसने इसको प्रोसेस करके इसको अलग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि करेक्ट। इसका जॉब रोल है कि इसको कन्वर्ट करना लिस्ट में, एंड हम्म लिस्ट इज डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एवरी टाइम इन पाइथन। हम्म हम्म तो वो आपको मेंशन करके दे रहा है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे फ्लैट मैप, उस केस में ये आपको मेंशन नहीं करके देगा, बल्कि ये पूरा एक ऐसी दे देगा 1,2,3,4,5,8, पूरा ले लेगा वो। पूरा एक ही ले जाएगा, आपको पता ही नहीं लगने देगा कि ये अलग अलग एलिमेंट है या एक ही है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन फ्लैट मैप एंड मैप। और ये इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस यू टू डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फ्लैट मैप। सो यहाँ पे अल्टीमेटली स्प्लिट क्या कर रहा है, तो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करते वक्त किससे स्प्लिट कर रहा है, तो स्पेस से। सो एक और दो के बीच में है, बट उसको कंसीडर ना करते हुए उसको वो कॉमा को नहीं, एक कॉमा का सेगमेंट कोई रोल पकड़ नहीं रहा है, है। कॉमा का कोई रोल नहीं है। इफ आई रन द सेम कोड यूजिंग द कॉमा, यू वोंट हम्म फाइंड एनीथिंग हियर, हम्म नो आउटपुट। आप देखो यहाँ पे केवल एक कॉमा है, मतलब उसको अलग अलग इसने पूरे पूरे चीजों को ही एलिमेंट की तरह ट्रीट करके दे दिया आपको। कॉमा उसने अब ट्रीट किया क्योंकि अब हमने कॉमा का सेपरेटर दिया है। हम्म नाउ आई एम गिविंग एनी, फॉर एग्जांपल एस्ट्रिक मैंने एक से सेपरेट दे दिया, नाउ आई वोंट फाइंड एनी आउटपुट। हाँ, क्योंकि है ही नहीं वहां पे तो। हाँ, क्योंकि वो है ही नहीं। ओके, ठीक है शायद। ओके, थैंक यू। Okay, so anyone having any question? So I just uploaded this file here. ये code file यहाँ पे available है. Anytime you can come back here and can see this file how we are working on PySpark. जितना डेली का फाइल होगा, जितना कोडिंग होगा, आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 15, डे 50 के बेस पे मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँ। ओके, एनीवन? ओके, सो लेट्स सी। ये हमारा गो टू रिसोर्स हमारा एज्योर का डेटा ब्रिक्स का पोर्टल है। तो अगर आप इसका पोर्टल देखोगे तो आपको ये दिखेगा वर्क स्पेस को लॉन्च करने का। और जैसे ही आप वर्क स्पेस को लॉन्च करोगे तो आपको ये क्रेडेंशियल पूछा और आपको ये एक एनवायरनमेंट दिएगा। So in upcoming lecture, we are gonna talk about the approach of using Azure Databricks as well. अब आप देखिए, can you see this similar kind of environment here? यहाँ पे लेफ्ट पेन में है कुछ कुछ जो आप अगर टूल्स के पढ़ोगे आप, तो जो टूल्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो सारे ऑलमोस्ट डेटा ब्रिक्स के जैसे ही है। तो डेटा ब्रिक्स यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जबकि डेटा ब्रिक्स यहाँ पे क्या है, जो आप जैसे न्यू पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नोटबुक का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपके डैशबोर्ड का, क्वेरी का, पाइपलाइन का ऑप्शन आ गया। तो ये सारी क्वेरी को और एडवांस चीजों को लिखने का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज कर रहे हैं, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एड्रेस। तो इसमें लिमिटेशन के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हम फुल फर्निश्ड का अपना यूज कर रहे हैं, फुल्ली जो हमारा पेड वाला वर्जन है। तो ये हमारे अपलोड डेटा का ऑप्शन है, ये सीक्वल एडिटर है, आपको सीक्वल एडिटर करना है या कोई भी अपलोड करना है डेटा। नाउ while uploading data set you can use your Azure का जो हमारा ब्लॉब है वो हम यूज कर सकते हैं while uploading data here inside the Databricks, Azure Databricks. It's not individual Databricks, ये Azure का Databricks है। सो जो पाइपलाइंस रहेगी उसमें हम लोग ऐड करेंगे डेटाब्रिक्स Yes, नोटबुक। yes. So benefits of using Azure Databricks is here you can easily connect your blob storage
here in the pipeline और ETL प्रोसेस आपको कुछ भी करना है तो आपको जो हमने वहां पर मैन्युअली अपलोड किया था ये वाला टेबल के अंदर टेबल, फिर यहाँ पर Hadoop का फाइल सिस्टम जो है यहाँ पर जो हमने अपलोड किया था ये वो हमें मैन्युअली अपलोड नहीं करना होगा, बस हम उसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, इट विल परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कुछ। ओके बट कोड एक ही चलेगा, जैसा कि यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है इस नोट पे, जो ये कोड है ये सारे कोड एक ही होंगे, बस डिफरेंस कहाँ होगा, जो आप ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हो, दिस कनेक्टिविटी विल डिफरेंट हियर, ओनली दिस पॉइंट इज डिफरेंट. Let's pause for a moment to discuss any question you have. So in the upcoming session, we will focus on building cloud services and leveraging out of the box functionality of this database. Anyone, any question? So not with the tech with this session or something. I understand the thing. But maybe if you have some 10-15 minute, so I would like to talk with you considering my background and maybe what could be the possible way and possibility to grow better. Maybe if you can give me idea. But yeah, whenever you have time, and I don't want to keep others also engaged if they are busy. So We let can me know. call out. I can call you separately. Okay, sure. So that will help me to get the clarity, plan the plan of action, and then how to approach for next things. Yes. So I'm going to delete my cluster. अगर ये चलता रहेगा तो ये मेरा कहीं ना कहीं मेमोरी को स्पाई करेगा. आफ्टर 2 आवर्स ये ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाता है. अगर आप इसे डिटैच नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, यहाँ से आपको स्टॉप करने का ऑप्शन है. तो अगर आप इसने डिलीट नहीं करा या डिटैच नहीं करा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको डिटैच कर देगा आपकी नोटबुक. Inactivity रही तो इनएक्टिविटी इनएक्टिव 2 घंटे, केवल 2 घंटे का टाइम है. दो दो घंटे घंटे का था. 2 आवर्स के अंदर आपने इसे यूज नहीं करा तो वो एक्टिविटी किसी और को एलोकेट हाँ. कर स्पेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी GitHub पे अपलोड कर. so Sachin, I can create like I can launch this Databricks notebook, right? Or Yes. okay, First, directly go to this Databricks community. तो कम्युनिटी का आप एक बार अपना क्रिएट कर लेना, और नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में मैं किसी को भी अलाउ करूंगा कि अपना स्क्रीन शेयर करें. बट ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको बस लॉगिन साइन अप करना है, ईमेल आईडी पे आपके एक मेल जाएगा तो कन्वेंशनल. ये Azure से करना है कि डायरेक्ट भी कर नहीं, सकते हैं ना? डायरेक्ट अभी तो डायरेक्ट कर. Okay. Can you share me the link? yes. I'll share in the chat box. Okay, thank you. I also deleted my Azure instances, नहीं तो वो Azure में भी मेरे बिलिंग का पार्ट चलता रहेगा. Okay, I'm going to bind this session here. If we do not have any further question. Yes, sure, Sachin. Thank you. Thank you, Thank Sachin. you so much for joining. Thanks, Sachin. Bye-bye.